altitude, depth, rotation of Earth. Altitude is your height. So you already know what happens when you go above the surface of the Earth. जब आप अर्थ से दूर दूर जाते हो, व्हाट यू एक्सपीरियंस, क्या होता है? जी का वैल्यू बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। कम होता है। कम होता है. So let's prove it today. So this is your radius of the Earth, and I am talking at a particular height h. So now we are going to prove it. We know that the g value on the surface of the Earth, on surface, this is, we are talking about the altitude. So the g value on the surface of the Earth is given by gm upon r squared. Now if I am talking at particular height, what will be my g value? Answer. gm If upon I'm talking r at R plus particular plus the whole H square. square. Yes, r plus h the whole square. Whole square, So yes. this is equation number 1. This is equation number 2. Now what you're going to simply do? You're going to divide equation number 2 from equation 1. So you'll get the value as gh upon g is equals to, your gm will get cancelled, and you'll get the equation as, r let me square solve upon it. r R plus h square whole upon square. R plus R plus h the whole square upon gm upon r square. So this gm got cancelled, and you got the equation as gh upon g is equals to r square upon r plus h the whole square. So this is the formula. Now let's try to have some conditions such that I'm just modifying the formula for, and this formula, whatever I'm modifying, that formula will be applicable only for very large amount of height. Like if you are going, your height should be greater than the radius of the Earth. So now I'm going to modify the formula, and I'll try to have an equation from which I can try to calculate the gravity, and the condition is my h should be very, very greater than r. I am putting the condition that this formula is only applicable when my h will be greater than r. And why I am taking this condition while modifying the formula, that we'll understand further. मतलब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ये जो फॉर्मूला है इसको मॉडिफाई करने वाली हूँ, और मैं ये कंडीशन ले रही हूँ कि अगर मैं उसको मॉडिफाई कर रही हूँ तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट जो भी फॉर्मूला, नया फॉर्मूला आएगा, वो उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा जहां पर मेरा h का वैल्यू r से बहुत बड़ा होगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझा आपको what I'm saying? Yes. Yes. Students, are you clear what I'm trying to say? I am saying, मैं ये जो वैल्यू, ये फॉर्मूला मिला है ना, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करने जा रही हूँ, और मैं इसको इसलिए मॉडिफाई कर रही हूँ कि मेरे को एक नया फॉर्मूला मिले, और वो फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब मेरा हाइट का वैल्यू मेरे अर्थ की ग्रेविटी से बहुत ज्यादा बड़ा होगा. समझ में आया व्हाट आई सेड? Yes. Yes. ठीक है. Yes, ma'am. सॉरी, आई टोल्ड अपोजिट. Means मेरा अर्थ हाइट के का रेडियस वैल्यू से विल ज्यादा बी बड़ा वेरी होगा. वेरी स्मॉलर देन रेडियस ऑफ द अर्थ, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. सो h by r का जो भी रेशियो होगा, that should be Very much lesser than 1. smaller than 1. ये कंडीशन कब मिलेगी? ये कंडीशन कब मिलेगी? When my h by r will be smaller than 1. ये कब मिलेगी? What do you think? R will be greater. R will be greater than h. R greater than नीचे h. होगा, R नीचे होगा. I told opposite. Whatever formula I am going to modify will be such that your h will be smaller than, your h will be smaller than
What? Radius of it. Yes. So let's try to have this formula. So I am modifying, I'm writing it here. I am modifying the formula such that my h by r should, and this formula is applicable such that my h by r is smaller than 1. ये formula Ma'am, your तभी voice is applicable है जब मेरा breaking. h, my voice is breaking. Yes. Okay, wait for a while. Ma'am, voice is break. It's still breaking. स्क्रीन ब्लर हो गया मैम। यस मैम यस। अब ठीक है, स्क्रीन ठीक है। रीडेबल। Is it readable now? Yes. 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 When I'll have h by r smaller than 1, it means that I earlier said that my h should be greater than r. That is wrong. My h should be smaller than r. It should be very smaller than r. So I'm talking about small altitude. मैं जो फॉर्मूला मॉडिफाई करने वाली हूँ वो मैं स्मॉल एल्टीट्यूड के लिए, स्मॉल हाइट के लिए करने वाली हूँ। समझा? समझा व्हाट आई मॉडिफाइड? Yes. 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 Or h is greater than r, that is wrong. I am saying it again that I am modifying the formula to have a general formula such that it is for the condition where my h is smaller than r. Clear everyone? And then I'll get h by r smaller than 1. So let's modify the formula. Okay. So the equation is gh is equals to gh upon g is equals to r square upon r plus h the whole square. So what I am going to do, I am going to take r square common from here. So when I take r square common from here, I'll get r square upon, here I have taken r square common, this will become 1. ये mathematical step है, plus h by r the whole square. आप इसको चाहिए तो एक बार open करके expand करके देखना, आपको यही मिलेगा. ठीक है? Now this got cancelled. And you got the equation as gh upon g is equals to 1 upon 1 plus h by r the whole square. यहाँ तक clear हुआ सबको? Yes. Yes. Okay. Let's move further. So I got the equation as gh upon g is equals to 1 upon. Is it going fast or is it okay? यहाँ तक आपको सबको समझा है? किसी के लिए फास्ट गया है क्या ये? बोलो बच्चों. Is it okay? Yes. 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 अब मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूँ. ब्रेक हो रहा है। वापस ब्रेक हो रहा है. अभी भी ब्रेक हो रहा है. स्टूडेंट्स No, miss. No, ma'am. No. ठीक है. सो ये समझा स्टेप? Yes. Yes. ये से ऊपर उठा के लेके गए. सी अब यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करने वाले हैं. पढ़ा है बाइनोमियल थ्योरम? Ma'am, Yes. start Yes. हुआ है। Start हुआ है.
स्टार्ट हुआ है a plus b the whole square is a square plus A 2ab square plus plus b 2ab square, ये plus b binomial square. theorem से ही 2ab. आता है, Yes. Yes. ये बाइनोमियल थ्योरम से आता है। बट बाइनोमियल थ्योरम का एक कंडीशन है, अगर स्टार्ट हुआ है तो सर ने सबसे स्टार्टिंग में ही बताया होगा। वो कंडीशन क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम का? बाइनोमियल थ्योरम का एक कंडीशन है, आप जब बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे तो आपको एक कंडीशन मिलेगा, और वो कंडीशन बोलता है कि ये जो वैल्यू होती है ना, ये वाली वैल्यू, बाइनोमियल थ्योरम आप उसी पे लगा सकते हो जिसपे ये वाली जो वैल्यू होती है ऐसे पावर्स के लिए, ये माइनस के पावर्स के लिए आप बाइनोमियल थ्योरम, या पावर्स के लिए आप बाइनोमियल तभी लगा सकते हो जब ये जो ये वाली वैल्यू होती है बी वाली वैल्यू, इट शुड बी स्मॉलर देन 0, तभी आप बाइनोमियल थ्योरम उसके ऊपर लगाकर उसको एक्सपांड कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि h हम लोग बहुत ज्यादा छोटा लेने वाले हैं r से, तो ही मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा पाऊंगी, क्योंकि जब मेरा h r से छोटा होगा तो ही मुझे ये 0 से लेस देन या 1 से लेस देन वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? समझा? Yes. 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 आप लोग ये पढ़ोगे कि जब आप ऐसे कुछ एक्सपांड करोगे तो वहां पर एक कंडीशन दी होगी कि ये जो वैल्यू है, ये b की जो वैल्यू है, ये वैल्यू स्मॉलर देन 1 होनी चाहिए। अगर ये स्मॉलर देन 1 होगी तो ही आप उसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड कर सकते हो। तो जब आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करोगे, यू विल गेट द इक्वेशन एज 1 minus 2h by r। हम लोग हायर ऑर्डर्स को निग्लेक्ट करेंगे, एंड जब आप इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे तो आपको इक्वेशन आता है 1 minus 2h by r। So gh is equals to g into 1 minus 2h by r। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है बताओ? अभी मैंने बताया ना, H is very much H smaller is than R. very less than R. yes, h is very very smaller than less than r, और h by r is smaller than 1, Smaller, तभी smaller ये than फॉर्मूला 1. कर सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला रॉन्ग होगा। समझा? क्योंकि इसको जिस Yes. Yes. चीज के हेल्प से बनाया है वो चीज खुद बोलता है कि वो उन्हीं पर एप्लीकेबल है जहां पर b की वैल्यू शुड बी लेस देन 1। ठीक है? आर यू पीपल क्लियर टिल हियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है डेरिवेशन में? Do you people have some problem in the derivation? Now you have to do one thing, write it in your notes, जैसा लिखा है as it is लिख के ले लो notes। पहले हेडिंग दो, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ g विद एल्टीट्यूड, फिर मैं कुछ एक स्टेटमेंट लिखवा रही हूँ वो लिख के लो, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। पहले हेडिंग दो, वेरिएशन इन g वैल्यू विद एल्टीट्यूड, वेरिएशन इन g वैल्यू विद एल्टीट्यूड। दिया सबने हेडिंग? Yes. Write down. Consider a body of mass small m. Consider a body of mass small m. Consider a body of mass small m on the surface of the earth. On the surface of the earth, then the acceleration due to gravity on the surface, then the acceleration due to gravity on the surface the acceleration due to gravity on the surface is given by ये लिख के लो डेरिवेशन। जब आपका वहां तक हो जाए तो मुझे बता देना, मैं नीचे शिफ्ट कर दूंगी। आज हम डेरिवेशन करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में सारे डेरिवेशन जितने भी किए हैं उनके ऊपर सम्स करेंगे। 4 डेरिवेशन है, हम चारों आज करेंगे। हो जाए तो बोलना, मैं डायग्राम भी बनाना है ना मिस? हो गया।
डायग्राम भी बना ना। Yes, my screen is blurred. हाँ डायग्राम ब्लर हो क्या? यस मैम। Yes. आप ठीक है? अब ठीक है? नो मिस। No. अभी तो और Zero गई. So you got to just write it in the way. Constant पहले ले लेते हैं. 4/3 pi g into rho into r minus d. This is my question number 7. ठीक है? यहाँ तक समझा सबको? ये रो सेम क्यों लिया Yes. समझा? I am considering density to be uniform. Now dividing equation 2 from 1. So therefore GD by G is equals to 4/3 pi G rho into R minus D. 4/3 pi G rho into R. Is it okay? This part got cancelled. You got GD by G is equals to R minus D by R. समझा सबको ये? Yes. Yes. अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो. GD by G is equals to R 1 कॉमन लोगे minus d तो by r. 1 minus D by R. और ये नीचे का एक R है. This got cancelled. And you got the equation as GD is equals to G into 1 minus D by R. This is applicable for all the depth. Is it clear everyone? Yes. Yes. तो Yes. कुछ प्रॉब्लम है डेरिवेशन में तो पूछ सकते हो. Otherwise start writing. Variation in the value of G. जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है consider a mass of consider an object of mass m or consider a body of mass m. The acceleration due to gravity inside the on the surface is given by this and then आगे continue कर दो. लिख रहे हो ना आप लोग? Yes. मिस अगर सेंटर पे जाए तो जीडी जीरो हो जाएगा ना? क्या हुआ? मिस अगर सेंटर पे गया तो डी आर के इक्वल हो जाएगा, फिर तो जीरो हो जाएगा जीडी. सेंटर पे आ गया अगर तो आप बताओ मुझे क्या होगा? 1 minus 2. डी इज इक्वल मैंने आर कहा हो ना it जाएगा. is so that is not applicable ना. You have given the condition ना that it should be smaller than 1. I didn't said that it should be smaller than equal to 1. For what you are talking about first of all? अगर सेंटर पे जाएंगे तो डी आर के इक्वल हो जाएगा ना? Yes, तो At the फिर वो center, r minus तो r 0 हो zero जाएगा. जाएगा. Yes, 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 yes. या फिर if you go with this formula, so d will be equal to r. So this got cancelled. You'll get 1 minus 1, that will be 0. So at the center of your earth, the gravity is 0. Yes. अर्थ पे आपकी ग्रेविटी 0 होती है. अर्थ के सेंटर पे, सॉरी. ठीक है, लिख के लो फटाफट. कहाँ पहुंचे? दिख रहा है अभी भी स्टिल? ब्लर हो गया हम मैम। ब्लर हो ब्लर हो गया. ठीक है, अब ठीक है. यस मैम थोड़ा नीचे लो ना। हो जाए तो बोलो. Done. Done? No Should I one. change things?
Done, man. Done. मीन्स एक बार पिक्चर समझा ना, अगर जी का डिक्रीज क्यों होता है डेप्थ इंक्रीज होने से? क्या हुआ? ये नहीं समझा, डिक्रीज डेप्थ इंक्रीज होने से जी डिक्रीज क्यों होता है, ये नहीं समझा। इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज क्यों होता है ये नहीं समझा। मीन्स डेप्थ डिक्रीज होने की वजह से इंक्रीज होने की वजह से जी डिक्रीज क्यों होता है, ये नहीं समझा। ये नहीं समझा। ये देखो, जब आप ये सेंटर पे आते हो, आपकी आर की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होता है, बोलो। कम डिक्रीज होता जा रहा है। डिक्रीज होता जा रहा है। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो, आपको फॉर्मूला पता है कि G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो अगर आर डिक्रीज हो रहा है तो मेरे को फॉर्मूला के हिसाब से जी बढ़ता हुआ दिखना यस चाहिए, यस है ना। बट ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हो तो जी की वैल्यू हमेशा सेंटर से सेंटर देखी जाती है। तो ये पर्सन का सेंटर यहाँ पर है, यहाँ पे, तो ये ऊपर का मास फिर कंट्रीब्यूशन में नहीं होता, ऊपर का Yes, मास समझा। कंट्रीब्यूशन में नहीं होता मास के। यस सो सिर्फ आप कौन से मास की वजह से आपका जी रिजल्ट करेगा? ये वाले मास की वजह से। यस सो अब आर के साथ साथ अगर आर कम हो रहा है तो एम भी कम हो रहा है, और मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है? मास। जी के होने के पीछे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मास की है, यस समझ रहे हो। सो यस इसीलिए जब मास भी कम हो रहा है तो अगर हम दोनों का रिजल्टेंट देखें तो मास डोमिनेंट है, मास होगा तो ही ग्रेविटी होती है, तो मास ही कम हो रहा है तो ग्रेविटी, इसीलिए ऑब्जर्व किया गया कि ग्रेविटी भी कम होती जाती है और सेंटर पे जाके जीरो हो जाती है, समझे? यस यस ओके, ठीक है, हो जाए बच्चों तो बोलो, जहां तक दिख रहा है स्क्रीन में वहां तक हो जाए तो बोलो, फिर मैं शिफ्ट करती हूँ। हो गया मैम। आप लोगों को कुछ नहीं समझ रहा है लिखा हुआ या नहीं क्लिक हो रहा है क्या कि मैं क्या किया, तो प्लीज पूछो वहाँ, क्योंकि ये स्टेप्स बहुत ही मैथमेटिकल है इसलिए थोड़ा सा फटाफट लिया है, बट इतना है कि आपको समझ जाए। अगर नहीं समझा है तो भी पूछो, फास्ट हुआ है तो भी पूछो, I'll explain you again, not a big deal. There is an homework for you, आज जितने डेरिवेशंस करेंगे आपको सब 3 टाइम्स प्रैक्टिस करके आना नेक्स्ट लेक्चर में। 4 डेरिवेशंस अगर 4 होते हैं तो चारों के चारों, 3 होते हैं तो 3। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके ऊपर सम्स करेंगे। मैम थोड़ा नीचे लो। शिफ्ट करूं? यस। शिफ्ट मैम। हो गया? Yes.
पुरुष व्यक्तिरेखा आणि विजेता आहे काय अर्थच नाही याला. नाही का शिवा शिवा दादा Done, ma'am. थँक्यू सो मच. खूप छान वाटतं. सबका हो गया? दुसरं परवा ठीक है, ये दोनों डेरिवेशंस एक बार गो थ्रू करके लो. देखो आप लोगों को कुछ डाउट है क्या? थँक्यू सो मच Just look at those two derivations. निखिल दादा Few people have some doubt. पुष्कर दादा विकास बोलो. सिद्धी लास्ट वाला स्टेप दिखा. थँक्यू सो मच मला हा पुरस्कार दिल्याबद्दल थँक्यू सो मच. थँक्यू. विजेत्यांना प्रेम मान्यवरांना प्रेम. डन मॅम, थँक्यू. तुम्ही ते सज्जन Okay, let's go ahead with the next. That is, first we'll understand one graph and then we will go ahead with the next derivation. पहले ग्राफ समझते हैं and then फिर एक डेरिवेशन के साथ जाएंगे. ये ग्राफ जो समझा रही हूँ, it is very important. So जरा ध्यान से समझो कि ग्राफ एग्जैक्टली आपको समझाना क्या चाह रहा है. हमने अभी देखा कि GH/G का जो जनरल फॉर्मूला था, इट वाज समथिंग R² upon R plus H the whole square, है ना? This was the formula, correct? Yes. So I can write it as GH is equals to G into R² upon R plus H the whole square. Now I am saying that, okay, just go ahead with the depth का formula, that was G into 1 minus D by R, है ना? This is the formula we Yes. have got. Okay, now just look at the situation and just look at the graph. This is a graph of G versus distance. Of course, the distance is from the surface of the earth towards height and from the surface of the earth towards the center of the earth. So let's say this is capital, this is distance, okay? Yes. So it's my R, which is the surface of the earth. ये मेरा Yes. surface of the earth का radius पे है, ठीक है? अब अगर मैं उससे नीचे जाती हूँ, so मुझे Depth पता है कि होगा, जैसे depth. जैसे मैं जैस ब्लर है, आवाज क्लियर है मेरी? Yes. 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 ठीक है, मुझे पता है कि मैं अगर सरफेस से नीचे, ये मेरा सरफेस है, रेडियस R, अगर मैं ये सरफेस से नीचे जाती हूँ तो मेरी G की वैल्यू सिंपली क्या होती है? व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस, Decrease. Decrease. डिक्रीज होती है. मतलब अगर मैं R इज इक्वल टू 0 पे हूँ, मतलब मैं सेंटर पे हूँ, तो मेरी G की वैल्यू 0 होगी. Zero. जैसे 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 मैं Zero. ऊपर जाऊंगी टिल द सरफेस R, मेरी G की वैल्यू क्या होती जाएगी? Increase. बढ़ती Increase. जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. Yes. बट एक बार मैं सरफेस R पे पहुंच गई, वंस आई हैव रीच्ड सरफेस R, उसके बाद अगर मैं फिर R की वैल्यू बढ़ाऊंगी तो वो डिक्रीज हो जाएगी. Decrease. ठीक है, ऐसा हो रहा है. बट जस्ट लुक एट द Yes. ग्राफ का शेप, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, है ना? बट ये स्ट्रेट लाइन है क्या? Yes. No. No. Curve. एक्सपोनेंट है. इट्स अ कर्व, इट्स नॉट एक्सपोनेंशियल. Yes. एक्सपोनेंशियल बहुत, एक्सपोनेंशियल कर्व में और बाकी कर्व में एक डिफरेंस है कि एक्सपोनेंशियल बहुत जल्दी गिरता है,
ये बहुत जल्दी गिरने वाला हाँ। कर्व नहीं है। No. जी की Yes. वैल्यू आपको थोड़ी Yes. फटाफट फटाफट गिरती है। आपको पता है ना एक पर्टिकुलर हाइट तक जी की वैल्यू में कोई खास चेंजेस नहीं दिखता। तो आप लोग समझो कि जब आप ग्राफ बनाते हो उसका बहुत मीनिंग होता है। लाइक अगर एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक है तो वो बहुत ही फटाक से दिखाएगा। मतलब इफ यू वांट टू थिंक कि कैसा दिखाएगा तो समथिंग ऐसा, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और वो पॉइंट एकदम गिर जाएगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Yes. This is not perfectly exponential. This is your, अगर आप इस फॉर्मूला को देखो, so just look at the part. This is your GH is proportional to R plus H the whole square. मतलब जैसे जैसे मेरा हाइट बढ़ता जाएगा मेरी G की वैल्यू कम होती जाएगी, बट वो कम होने के साथ साथ वो सिर्फ R plus H से कम नहीं हो रही है, R plus H the whole square से कम हो रही है। मतलब वो स्क्वायर के पावर को फॉलो कर रही है। समझ में आ रहा है? और स्क्वायर का अगर आप x स्क्वायर y इज इक्वल्स टू y इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर है, अगर आप ये पैराबोला ग्राफ स्टेप ड्रॉ करो, क्या हुआ? अगर आप ये ग्राफ ड्रॉ, अगर आप ये ग्राफ ड्रॉ करो y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, so you will experience that कि yeah of course you'll get a parabola, you'll experience something like this, मतलब कर्व ही मिलता है। ये 0 से पास होगा ऐसा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व है ये। सो अगर कोई चीज स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होती है तो वो कर्व ही होती है, बट यहाँ पर ये डिक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर से। समझ में आ रहा है? Yes. Yes. और ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये सिंगल पावर के साथ, मीन्स यहाँ पर कोई स्क्वायर का पावर नहीं है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये कांस्टेंट है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से जा सकते हो। ये वो कांस्टेंट है m, और ये आपका x का वैल्यू है 1 माइनस जी बाई आर, जो ये बताता है कि अगर आप ऊपर ऊपर जा रहे हो तो अगर आप r की तरफ जा रहे हो तो आपकी g की वैल्यू बढ़ती जाएगी और वो एक सिंगल पावर से बढ़ेगी। मतलब इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। कुछ समझे? दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन that when you draw a graph, this is a straight line and this is a curve, because G, D और R में एक पावर के साथ रिलेशन चल रहा है, रेज टू 1 का पावर है ना। y is equals to mx, where m is constant, that is a slope, and x is how your function is varying with y, है कि नहीं? Yes. So y is equals to mx होगा तो it is a straight line. This is your m. If you compare this this equation, it is something like this: y is equals to mx. m is the slope, x is this axis. तो ये सिंगल पावर है ना। जब ऐसा होता है you get a straight line. बट अगर यहीं पे y is equals to x square होता तो you get a curve. बट ये कर्व आपको इंक्रीजिंग मिल रहा है, ये कर्व डिक्रीजिंग क्यों मिल रहा है? क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो समझ रहे हो ग्राफ? Yes. 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 पीपल क्लियर? सो आप ये चीज ग्राफ एनालाइजेशन आपका आना चाहिए कि कोई भी ग्राफ देखकर आप ये बता सको कि एग्जैक्टली आपका जो भी फंक्शन है वो किस के प्रोपोर्शनलिटी में डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, किस पावर के प्रोपोर्शनलिटी में डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? समझा व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Yes. सो ये ग्राफ आपके मोस्टली एग्जाम्स में आता है। दिस ग्राफ इज देयर इन योर एग्जाम। सो दिस इज इनसाइड द अर्थ and this is outside the earth. It's outside the earth surface. किसी को कुछ प्रॉब्लम है ये ग्राफ समझने में? अगर मैं सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ और सरफेस अर्थ के सरफेस की तरफ जा रही हूँ तो बढ़ता जाएगा, पर जैसे ही सरफेस पे पहुंचेगा सबसे मैक्सिमम होगा। अब मैं हाइट बढ़ा रही हूँ, तो जब मैं हाइट बढ़ाती जा रही हूँ तो मैं जितना जितना हाइट बढ़ाऊंगी, मतलब मैं आर से जितना दूर जाऊंगी, जितना हाइट पे जाऊंगी, मेरी जी की वैल्यू कम होती जाएगी। अब ये ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये ग्राफ कर्व ही होगा। क्यों? क्योंकि वो सिंगल पावर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, वो स्क्वायर के पावर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर यू पीपल क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. Yes.
ठीक है, draw this graph. Give the heading as variation of graph of variation of G with the distance at the depth and the altitude. Give the heading as graph of variation in G with depth and altitude. तो पहले ये फॉर्मूलास लिख के लो साथ में. लेफ्ट, तो मैं आज वो डेरिवेशन नहीं सिखाऊंगी. अगर टाइम बचा तो मैं आपको सिर्फ समझा दूंगी कि हम लोग क्या करने वाले हैं. पहले ये दोनों फॉर्मूलास लिख के ले लो, ये वाला और ये वाला, एंड देन ये ग्राफ ड्रॉ करो. फिर मैं कुछ लिखवाऊंगी, वो लिख के लो. ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आता है. आपको ये ग्राफ पता होना चाहिए. हेडिंग लिखना है ग्राफ ऑफ वेरिएशन इन जी विद डेप्थ एंड एल्टीट्यूड. Done. Done? Yes. Yes. So, okay, you have only 3 minutes left. Just go through with everything. If you have some doubt, please ask. And in next lecture, we'll go ahead with one derivation and then we'll go ahead with some sums related to these conditions. मैम ये बोलो. डेरिवेशन कितने टाइम लिखना है? 3 times. मिस ग्राफ भी बनाना है. ये जो भी एंट्रेंस आप दे रहे हो. ठीक है, किसी को कुछ डाउट है?
फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ डाउट है यहाँ तक? No. Okay. So we'll wind up here. We'll continue in the next lecture. Bye everyone. Take care.